AN نیوز کی جانب سے ساری دنیا میں بسنے والے ہندوستانیوں کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کا میزبان سید اکمل پیرا مرادی۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ فلسطین نے UAE کے فیصلے کو غداری قرار دیا، امارات سے سفیر واپس بلایا۔ اسرائیل سے تعلقات پر فلسطین، ترکی اور ایران کی متحدہ عرب امارات پر کڑی تنقید۔ UAE سے معاہدے کے اگلے ہی روز اسرائیلی وزیر اعظم کا یو ٹرن۔ معیشت کو کورونا کے اثر سے جلد باہر نکالنا ترجیحات مودی۔ ہندوستان کی طرف نگاہ اٹھانے والوں کو مناسب جواب دیا جائے گا، مودی۔ ملک میں کورونا وائرس کا قہر جاری، ایک بار پھر ایک دن میں 65,000 سے زیادہ کیسز آئے سامنے۔ گہلوت حکومت نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر تمام ملک کے لیے باعث فخر۔ یوم آزادی پر راہل گاندھی کی مبارکباد۔ بنگلورو فسادات، ڈنکا بھڑکانے والے کی ماں نے کہا کہ مسلم نوجوانوں نے میری جان بچائی۔ بنگلورو تشدد، علماء نے دلت MLA کے گھر کو ازسر نو تعمیر کرنے کی پیشکش کی۔ ونپرتی میں مسلمان خاندان کے 4 افراد کی مشتبہ حالت میں موت۔ یہ خبر بہت افسوس کے ساتھ سنائی جائے گی کہ آج صبح خطیب دکن علامہ سید کاظم پاشا قادری الموسوی کا مختصر علالت کے بعد کھیر ہاسپٹل بنجارہ ہلز میں انتقال ہو گیا۔ ضلع کڑپا میں آج کورونا وائرس کے 379 نئے مریض، مصدقہ جملہ تعداد بڑھ کر 16,707 ہو گئی۔ آج ضلع کڑپا میں 74ویں یوم آزادی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ فلسطین نے UAE کے فیصلے کو غداری قرار دیا، امارات سے سفیر واپس بلایا۔ محمود عباس OIC کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ حماس کی جانب سے بھی فیصلے کی مذمت۔ حیران کن طور پر عمان، بحرین اور مصر کی جانب سے فیصلے کا خیر مقدم۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات بحال کرنے کے فیصلے پر فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے UAE کے اس فیصلے کو فلسطینی کاز کے ساتھ غداری قرار دیا۔ اسرائیل سے تعلقات پر فلسطین، ترکی اور ایران کی متحدہ عرب امارات پر کڑی تنقید۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فلسطین کے صدر محمود عباس نے حماس کے رہنما سے گفتگو میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنے کو جارحیت قرار دیتے ہوئے دونوں ممالک کے مابین ہونے والے امن معاہدے کو مسترد کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ترکی کے صدر طیب اردگان نے متحدہ عرب امارات پر سخت الفاظ میں تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ اور خطے کے لوگ اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر متحدہ عرب امارات کے دوہرے معیار کو کبھی فراموش نہیں کر پائیں گے۔ امارات نے فلسطینی عوام کے امنگوں پر اپنے مفادات کو ترجیح دی۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے بھی اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں کوئی بھی پیش رفت فلسطینی عوام کے بغیر قابل قبول نہیں ہوگا۔ متحدہ عرب امارات نے فلسطینی عوام کے جذبے کو مجروح کیا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے ترجمان کا معاہدے کو خوش آنند قرار دیتے ہوئے کہنا تھا کہ مشرقی وسطی میں سلامتی اور امن کی کوششوں میں معاون ہر اقدام کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے امریکہ کی ثالیثی کے نتیجے میں ایک معاہدے پر اتفاق کیا ہے، جس کے تحت دونوں کے درمیان آپس میں باقاعدہ سفارتی روابط کا قیام کا اعلان کیا گیا ہے۔ UAE سے معاہدے کے اگلے ہی روز اسرائیلی وزیر اعظم کا یو ٹرن۔
अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुत्तहदा अरब अमारात से मुआहिदे के एक रोज बाद ही अपने बयान में मगरिबी किनारे को इसराइल में जम करने से मुतालिक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात से बाहमी ताल्लुकात के मुआहिदे के तहत वो मगरिबी किनारे को इसराइल में जम करने के मंसूबे में ताखीर पर रजामंद हैं, लेकिन ये मंसूबा अभी भी उनकी टेबल पर मौजूद है। इसराइली वज़ीर आज़म टीवी पर खिताब में कहा कि उन्होंने सिर्फ इस मंसूबे में ताखीर पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन वो अपने हुकूक और अपनी जमीन के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। नेतन्याहू का कहना था कि इसराइल की खुद मुख्तारी को बढ़ाने के मंसूबे में कोई तब्दीली नहीं हुई। मगरिबी किनारे के इलाके में अमेरिका के साथ मुकम्मल अहम आहंगी के साथ हमारी खुद मुख्तारी है। दूसरी जानिब मुत्तहदा अरब अमारात के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शहजादे मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की जानिब से ट्विटर पर बयान जारी किया गया, जिसमें उनका कहना था कि यूएई ने इसराइल के मगरिबी किनारे के इलाके को जम करने के मंसूबे का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि फलस्तीनी इलाके को मजीद इसराइल में जम करने से रोकने के लिए एक मुआहिदा किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर खारजा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, ज्यादातर ममालिक उसे दो रियासतों के दरमियान महफूज हल के लिए अहम कदम के तौर पर देखेंगे। मईशत को कोरोना के असर से जल्द बाहर निकालना तरजीहात मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी मईशत में हिंदुस्तान की खिदमत को बढ़ाने पर जोर देते हुए आज कहा है कि मुल्क की मईशत को कोरोना के असर से जल्द बाहर निकालना उनकी तरजीहात है और उसके लिए 110 लाख करोड़ रुपए के 7,000 से ज्यादा मंसूबों की निशानदही की गई है। मिस्टर मोदी ने 74वीं यौम आज़ादी के मौके पर लाल किला की फसील से कौम से खिताब करते हुए कहा कि आज दुनिया आपस में मुंसलिक है और आज़ाद भी है, इसलिए वक्त की मांग है कि आलमी मईशत में हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क की खिदमत बढ़ाना चाहिए। आलमी भलाई के लिए ये भी है कि हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान का अपनी खिदमत में इजाफा करना है तो हिंदुस्तान को खुद को बाइख्तियार होना होगा, हिंदुस्तान को खुद कफील होना होगा। हिंदुस्तान को अवाम के लोगों की भलाई के लिए भी अपने आप को काबिल बनाना ही पड़ेगा। जब हमारी जड़ें मजबूत होंगी, हम खुद अहल होंगे, तो हम दुनिया की भलाई के लिए इक़दाम कर सकते हैं। हिंदुस्तान की तरफ निगाह उठाने वालों को मुनासिब जवाब दिया जाएगा, मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि हिंदुस्तान की तरफ निगाह उठाने वालों को मुनासिब जवाब दिया जाएगा और लद्दाख में दुनिया ने उसकी झलक देखी है। पीएम मोदी ने 74वीं यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से परचम कुशाई के बाद मुल्क से खिताब करते हुए कहा कि पूरे मुल्क वतन की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जोश और जज्बे से लबरेज है। मशरक़ी लद्दाख में चीन के साथ तकरीबन 3 माह तक जारी रहने वाले तनाज़ा पर उन्होंने कहा कि LOC से लेकर LAC तक मुल्क की खुद मुख्तारी व सालिमात पर जिस किसी ने आंख उठाई है, मुल्क की फौज ने उसका उसी जबान में जवाब दिया है। तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी का विकार हमारे लिए सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के बहादुर फौजी मादरे वतन की हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं, मुल्क क्या कर सकता है, दुनिया ने लद्दाख में देख लिया है। उन्होंने चीनी फौजियों के साथ पुरतशद्दुद झड़पों में शहीद होने वाले फौजियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो उन बहादुर फौजियों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें निछावर की। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर जारी, एक बार फिर एक दिन में 65,000 से ज्यादा केसेस आए सामने। मुल्क में कोरोना वबा की शिद्दत में इजाफे के दरमियान इस जानलेवा वायरस से शिफायाब होने वालों की तादाद में भी तेजी से इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 57,000 से ज्यादा मुतासिरीन सेहतमंद हुए, जबकि इस अरसे के दौरान 65,000 से ज्यादा नए अफराद इस जानलेवा वबा की जद में आ चुके हैं। सेहत व खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की जानिब से हफ्ते के रोज जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 57,381 अफराद वबा से शिफायाब हुए हैं,
جس سے صحت مند افراد کی مجموعی تعداد 18,08,937 ہو گئی ہے۔ اسی عرصے کے دوران 65,002 افراد مہلک وبا کا شکار ہو چکے ہیں، جس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 25,26,193 ہو گئی ہے۔ اسی مدت میں 996 افراد کی ہلاکت سے اموات کی مجموعی تعداد 49,036 ہو گئی۔ ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 6,625 سے بڑھ کر 6,68,220 ہو گئی ہے۔ ملک میں اس وقت فعال کیسز 26.45% شفایاب ہونے والوں کی شرح 71.61% اور اموات کی شرح 1.94% ہے۔ گہلوت حکومت نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ راجستھان میں چل رہے گھمسان کے درمیان گزشتہ روز پائلٹ کے گہلوت خیمے میں واپسی اور سیاسی بحران کے خاتمے کے بعد جمعہ کے روز گہلوت حکومت نے اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ اعتماد کا ووٹ تحریر اعتماد حکومت کی طرف سے پیش کی گئی اور برسر اقتدار جماعت اور حزب اختلاف میں زوردار بحث ہوئی۔ وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت کے ایوان میں بیان دینے کے بعد تحریک اعتماد صوتی ووٹ سے منظور کر لی گئی۔ اسی کے ساتھ اسپیکر سی پی جوشی نے ایوان کی کارروائی 21 اگست تک ملتوی کر دی۔ اسمبلی اجلاس کے بعد سچن پائلٹ نے کہا کہ حکومت کی جانب سے اسمبلی کو تحریک اعتماد پیش کی گئی وہ بہتر اکثریت کے ساتھ منظور ہو گئی ہے۔ حزب اختلاف کی جانب سے کی گئی کوششوں کے باوجود نتائج حکومت کے حق میں رہے۔ اسی کے ساتھ ان تمام شکوک و شبہات پر بھی روک لگ گئی جو ظاہر کیے جا رہے تھے۔ جو مسائل اکٹھا کیے گئے ہیں ان سبھی کے لیے ایک حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ حکمت عملی کا اعلان جلد ہی کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے بحث میں اٹھائے گئے سوالات کے جواب دیتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی کی مرکزی قیادت کو نشانہ بنایا اور کہا کہ مرکزی لیڈروں نے حکومت گرانے کی ٹھان لی تھی۔ میں نے بھی یہ عزم کیا ہے کہ اپنی حکومت کسی بھی قیمت پر نہیں گرنے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جس شکل میں اروناچل پردیش بی جے پی نے کانگریس کے 45 میں سے 40 MLA چرا لیے، مدھیہ پردیش، کرناٹک، گوا، منی پور میں ہمارے اراکین اسمبلی کی خرید و فروخت ہوئی، اسی طرح آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ہی سازش یہاں بھی کی گئی، اس میں بی جے پی کامیاب نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ اس سازش میں بی جے پی کے مقامی لیڈروں کو نظر انداز کر کے مرکزی وزیر حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی سازش رچتے رہے۔ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر تمام ملک کے لیے باعث فخر۔ صدر جمہوریہ نے آج کہا ہے کہ ایسے میں جبکہ ہندوستان امن پر یقین رکھتا ہے، وہ کسی بھی جارحانہ کوششوں کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت کا حامل ہے، جیسے کہ اس کے سپاہیوں نے مشرقی لداخ کی گلوان وادی میں اس وقت بتا دیا جب ہمارے بعض پڑوسیوں نے توسیع کی اپنی غلط مہم پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ مسٹر رام ناتھ کا در پردہ اشارہ چین کی طرف تھا۔ ملک کے 74ویں یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی شروع کردہ پہل آتم نربھر کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا اور کہتے ہوئے بیرونی سرمایہ کاروں کی خدشات کا ازالہ کیا کہ ہندوستان کی خود انحصاری کے معنی یہ ہیں کہ دنیا سے اجنبیت کے بغیر یا دنیا سے فاصلہ پیدا کیے بغیر خود مکتفی بنایا جائے۔ دنیا کے ساتھ ہندوستان کا رابطہ برقرار رہے گا۔ صدر جمہوریہ نے یہ بھی کہا کہ ایودھیا میں شری رام جنم بھومی پر مندر کی تعمیر واقعتاً سب کے لیے ایک لمحہ فخر ہے۔ یوم آزادی پر راہل گاندھی کی مبارکباد۔ پرینکا گاندھی نے کہا آزادی کا تحفظ ضروری۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے 74ویں یوم آزادی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی اور پنڈت جواہر لال نہرو کے نظریات کو لوگوں کے سامنے رکھا۔
बेंगलुरु फसादात, डंका भड़काने वाले की मां ने कहा कि मुस्लिम नौजवानों ने मेरी जान बचाई। बेंगलुरु सोशल मीडिया पोस्ट पर मंगल के रोज कावल बैरसेंड्रा में तशद्दुद फूट पड़ने के बाद दंगा भड़काने के मामले के अहम मुलजिम नवीन की मां ने कहा कि वो महज इसलिए जिंदा है क्योंकि उसकी जान मुस्लिम नौजवानों ने बचाई है। रुकन असम्बली श्रीनिवास मूर्ति की बहन जयंती ने कहा कि एक घर को आग लगाने से कुछ मिनटों कबल नौजवानों का एक ग्रुप ने इमारत के बाहर उन्हें पूरी हिफाजत के साथ निकाला था। हंगामा 8 बजे के करीब शुरू हुआ और जयंती को इस बात का यकीन था कि उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हालात निहायत खराब हो गए और वहां पर कोई रास्ता नहीं था कि मैं फरार हो सकूं क्योंकि सैकड़ों लोग सड़क पर थे और गाड़ियां चल रही थीं। थरथराते हुए जयंती ने कहा कि तकरीबन 10 बजे के करीब 5 लोगों का एक गिरोह आया और मुझसे कहा कि मुझे चले जाना चाहिए। फिर उसके साथ ही एक हुजूम हमारे सहन में पहले दाखिल हो गया। हुजूम में से एक फर्द ने दूसरी इमारत में मुझे हिफाजत के साथ ले जाने वाले ग्रुप से सवाल किया। हकीकत में 1 मिनट के अंदर मुझे दूसरी इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। हमारे घर को आग लगा दी गई। नवीन के एक तौहीन आमेज सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से फसाद फूट पड़ा था जिसने मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बात मजरूह हुई थी और उसी वजह से रुकन असम्बली और उनके हामियों के मकानात पर रात में हमला किया गया था। रुकन असम्बली के घर के करीब आरटी नगर के एक मंदिर को बचाने के लिए उसके पड़ोसी मुसलमानों ने इंसानी जंजीर बनकर ढाल का काम किया है। इस वाक़े का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। बेंगलुरु तशद्दुद, उलमा ने दलित एमएलए के घर को अस्सर नौ तामीर करने की पेशकश की। बेंगलुरु के तशद्दुद ज़दा इलाके में अमन व इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए उलमाए किराम ने एक बड़ा कदम उठाया है। कर्नाटका के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी की क़ियादत में उलमाए किराम के वफ़द ने आज शहर के मुतासिरा इलाके डीजेहली और कावल बेसेंद्रा का दौरा किया। सबसे पहले उलमाए किराम ने डीजेहली पुलिस स्टेशन पहुंचकर यहां शरपसंदों की जानिब से की गई तबाही का जायजा लिया। 11 अगस्त 2020 की रात पेश आए तशद्दुद के दौरान शरपसंद अनासिर ने इस पुलिस स्टेशन में घुसकर तोड़ फोड़ करते हुए इमारत के एक हिस्से को आग लगा दी थी। डीजेहली के बाद अमीर शरीयत की सदारत में उलमा का वक्फ मुकामी एमएलए श्रीनिवास मूर्ति के घर पहुंचा। 11 अगस्त को एक जानिब पुलिस स्टेशन के अंदर और बाहर तशद्दुद एहतजाज हुआ था तो दूसरी तरफ एक गवाह ने कावल बेसेंद्रा पहुंचकर वहां मौजूद एमएलए के घर में मुलजिम नवीन के घर में तोड़ फोड़ की और उनके घर को नजर आतश कर दिया गया। साबिक रियासती वजीर जमीर अहमद खान की मौजूदगी में उलमाए किराम ने चलकर खाकिस्तर हुए एमएलए श्रीनिवास मूर्ति के घर के अंदरूनी हिस्से का मुआयना किया। घर के अंदर और घर के बाहर किस तरह तबाही मचाई गई उसकी जानकारी श्रीनिवास मूर्ति ने उलमाए किराम को दी। उन तमाम हालात का जायजा लेने के बाद कर्नाटका के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी और दीगर उलमा ने मीडिया से खिताब किया। मौलाना सगीर अहमद रशादी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मुलजिम नवीन को हुकूमत सख्त सख्त सजा दे। उन्होंने कहा कि मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुलजिम नवीन की हरकत एक बड़े नुकसान और तशद्दुद का सबब बनी हुई है। उसी मौके पर मीडिया के सामने रियासत के अमीर शरीयत ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा, अगर एमएलए श्रीनिवास मूर्ति इजाजत दें तो तशद्दुद में तबाह हुए उनके घर की अस्सर नौ तामीर उलमाए किराम अपने खर्च से करेंगे। अमीर शरीयत की इस पेशकश पर एमएलए श्रीनिवास मूर्ति काफी जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि वो उलमा का शुक्रिया अदा करते हैं। एमएलए ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस उलमाए किराम की दुआएं उनके लिए काफी हैं।
वनपर्ती में मुसलमान खानदान के 4 अफराद की मुश्तबह हालत में मौत। रियासत ज़िला वनपर्ती में जुमा के रोज़ एक खानदान के 4 अफराद मुश्तबह हालत में मुर्दा पाए गए। ज़िला के रेवाली मंडल के मौजू नागपुर में एक खातून, उनकी बेटी, दामाद और नवासी की नाश मकान के मुख्तलिफ मकामात पर बिखरी पड़ी पाई गई। मुहलिकीन की शनाख्त 63 साला अजमेराबी, उनकी बेटी 35 साला अस्मा बेगम, दामाद 42 साला ख्वाजा पाशा और नवासी 10 साला हसीना की हैसियत से की गई है। सुबह से घर से कोई बाहर न आने पर पड़ोसियों को शक हुआ और पड़ोसी जब घर में दाखिल हुए तो देखा कि लाशें पड़ी हुई हैं, जिसके बाद उन अफराद ने फौरी पुलिस को अलर्ट किया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस के एक अहदेदार ने कहा कि हम इस बात की तहकीक कर रहे हैं कि आया उन अफराद ने खुदकशी कर ली है या फिर उन्हें किसी ने कत्ल किया है। मकान के पिछले हिस्से की जानिब बाउंड्रीवाल के करीब ख्वाजा पाशा की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस को उस लाश के करीब से नींबू, नारियल और अगरबत्ती दस्तयाब हुई हैं। उस इहाते में एक गड्ढा भी खोदा पाया गया। पुलिस ने कहा कि उस बात पर भी तहकीकात कर रही है कि कहीं ये अमवात जादू टोना मरतूब तो नहीं है। रियासत के चंद मवाज़ात में जादू टोना एक आम बात है। NSS के मुताबिक जिला वनपर्ती में एक मुस्लिम खानदान के 4 अफराद मुश्तबह हालत में लाशों की दस्तयाबी की वजह से मुकामी अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि उन अफराद ने खुदकशी की है या फिर उनका कत्ल हुआ है। पुलिस ने ताहाल मुश्तबह अमवात के पस पर्दा व जवाबात का पता नहीं लगाया। वनपर्ती सर्किल इंस्पेक्टर सूर्या नायक ने बताया कि पुलिस केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। ये खबर बहुत अफसोस के साथ सुनाई जाएगी कि आज सुबह खतीब दक्कन अल्लामा सैयद कासिम पाशा कादरी अल-मुसई का मुख्तसर अलालत के बाद खैर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स में इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल से मुसलमानों में गम की लहर दौड़ गई। उनके इंतकाल से कौम और मिल्लत का अजीम नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई मुश्किल है। उन्होंने अपनी जिंदगी का पेशतर हिस्सा मजहब की खिदमत में और मजहब की तबलीग में लगा दिया था। सैयद शाह शफी पाशा कादरी साहब बरादर सज्जादा नशीन आस्ताने लोबाले करनूल की इतलात के बमूजिब आज 10 बजे नमाज जनाजा दरगाह मूसा कादरी रहमतुल्लाह अलैह पुराना पुल में अदा की जाएगी और तदफीन अमल में आएगी। जिला कड़पा में आज कोरोना वायरस के 379 नए मरीज मुसद्दिका जुमला तादाद बढ़कर 16,707 हो गई। जिला कड़पा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 389 नए मरीज मुस्बत पाए गए हैं, जिससे तादाद बढ़कर 16,707 हो चुकी है। आज रिकॉर्ड तादाद में 1536 मरीज मुकम्मल सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। ताहाल 11,380 मरीज मुकम्मल सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब तक जिला भर में जुमला 181 मरीजों की मौत वाक़ई हुई है। आज जिला कड़पा में 74वीं यौम आज़ादी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। रियासती वज़ीर इंचार्ज कड़पा डॉक्टर सुरेश ने तिरंगा लहराया और पुलिस परेड की सलामी ली। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, इस मौके पर अपने खिताब में सुरेश ने कहा है कि आज हम मुजाहिदीन आज़ादी की वजह से आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 1 साल पहले अपने इंतखाबी मंशूर में अवाम से जो वादे किए उन्हें ताहाल 90% मुकम्मल किया चुका है। जुमला 129 कामों का अवाम को तयकीन दिया गया था, जिनमें से ताहाल 78 को तयकीन पूरा किया जा चुका है, जबकि 35 तकमीली तैयारियां हैं। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने किसी भी मजहबी फ़िरका पार्टी से ऊपर उठाकर अवाम की बहबूद और हम जहती तरक्की के काम कर रहे हैं। तरक्की के समरात को अवाम के हर तबके तक पहुंचाया जा रहा है। रेतु भरोसे प्रोग्राम के तहत रियासत के तमाम किसानों के खाते में रास्त तरीके से फी कस 13,500 रुपए दिए गए।
जुमला 5 बरसों में 67,500 रुपए की रकम खातों में जमा किए गए हैं। जिला कड़पा में पहले मरहले के तहत 2,90,629 किसानों में 448 करोड़ 25 लाख माली मदद की गई। वाईएसआर पेंशन हर माह रियासत के मुअम्मर अफराद में हर माह की 1 तारीख को अदा की जा रही है। जिला कड़पा में जुलाई माह में 3,44,000 मुअम्मर अफराद में 82 करोड़ 29 लाख पेंशन तकसीम की गई। इसी तरह से हर तबके को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस मौके पर नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश एसबी अमजद बादशाह, जिला कलेक्टर कड़पा हरी किरण के अलावा जिला के तमाम आला ओहदेदार मौजूद थे। मुख्तलिफ स्कूली बच्चों की रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। ఆహ్వానిస్తున్నాము. ట్రెజరీ విభాగం నుండి డిప్యూటీ డైరెక్టర్ డిస్ట్రిక్ట్ ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर। तुम खासुल खास हो, आम नहीं, तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत।